कर दिया। ओके, सो इनिशियली अपने को जो सबसे पहला क्वेश्चन दैट वाज ए 2023, इट वाज अ प्रीटी इजी प्रॉब्लम। इसमें हमने क्या था कि इनिशियली देयर वाज सीक्वेंस ए जिसका जो नेट प्रोडक्ट था दैट वाज 2023, दैट इज कि मल्टीप्लाइंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस ए विल गेट अ प्रोडक्ट इक्वल टू 2023। बट आफ्टर दैट उसमें से के नंबर्स रिमूव कर दिए गए थे, जिसकी वजह से अपने को एक सीक्वेंस बी मिला था और उसकी लेंथ थी एन। तो अपने को एक ऐसा सीक्वेंस ए जो कि रिकंस्ट्रक्ट करना है और उसके अंदर जो के मिसिंग एलिमेंट्स है अपने को फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सी लाइक इफ वी टेक द फर्स्ट टेस्ट केस, इसमें क्या था, पेस्टिंग इट हियर, ओ भाई साहब, so if you carefully observe this test case, you are given a string, a sequence of length 2, that is your sequence b, and thus that sequence is 5 and 2. But आपके जो missing elements है that is k is 2. You have to find those two missing elements out of this. See, the approach is pretty simple. If I carefully observe, then I can just see one thing. If there is a array initially that was a, if I take the net product that is like 5 to, let's assume this is something x and this is something y, then according to the given situation, the product that is 5 into 2 into x into y should be equal to 2023. So we have to find these elements. But if you observe in this test case, if you see that x into y is equal to 2023 by 10, you will observe that 2023 is actually not divisible by 10. So x into y will never exist in such a case. So it's pretty simple that if there exists this x into y such that the product of all a mod, sorry, 2023 2023 mod, the product of all a is equal to 0, then there will be existence of the solution, else there will be no existence of the solutions, like proved in this scenario that x into y will that is 5 into 2 into x into y is equal to 23 only and only if there exists a scenario that 2023 mod 5 into 2 should be equal to 0. That is 2023 should be divisible by the all elements that are present in the array A. If not, then you cannot say such a case exists. But now ये भी पूछा हुआ है इसके अंदर कि कौन कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे. So you can see कि अगर मेरे पास let's say k elements missing है, and if I find कि जो product है उनका वो क्या है, that is x into y is equal to what, then I can guarantee one thing that कि अगर let's say जो product आया missing product that is x and there are k elements missing, so for the rest k minus 1 terms what I can take 1 for those k minus 1 scenarios, and this is how you can solve this problem. This is the code for the same. You can see I have done a lot. I don't think it was actually necessary. So this was what. This is the main condition that if 2023 mod product is equal to 0, then there is an existence of the solution, and for the rest case you will print 1. Else there will be no such presence of answers. I hope the first problem is clear to all. Yep. So we'll jump to the second problem. So in the second problem, what we are given is कि a certain number x is chosen. You are given two integers a comma b, which is the two number x. So you have to find that number x. Okay. See, if I say
that there is a number x that is existing, but the case is that for certain it's let's say first n, let's say it has some n factors, and those first n minus 2 factors are missing, but the last two greatest factor, that is let's say factor d's d n minus 2, sorry, dn minus 1 and dn, these are given to you, and so that these are in increasing order. So you have to find this number x. So in order to do so, you can just take a very obvious situation, very obvious and certain observation. That is, if the GCD of the last two numbers is not equal to 1. Sorry. If the last two numbers are dividing each other, that is dn by dn minus 1, these are obviously dividing, see, if they both are dividing one another, like dn mod dn minus 1 is equal to 0, then obviously these are some continuous factors. Okay, so in case of continuous factors, what you can observe, that if they are continuous factors, then obviously the next x is going to be dn into uh, that factor d. And what is that factor? That factor is equal to dn by dn minus 1. Okay, like if you observe in the one of the test case, like this one, if you observe this, then the test case is 5 and 10. This is a and this is b. Then for sure 10 is divisible by 5, and that is 0. Okay, and when you divide 10 by 5, you will get 2. So if you see that, if there is existence of such a divisor, so obviously this is gonna be the uh, SPF of this, that is the smallest prime factor that of all this. So what I can do is, for answer in such case, that is if dn mod d n minus 1 is equal to 0, then in that case answer is equal to dn into that divisor, and that divisor is equal to dn by dn minus 1. Okay, I hope this condition is clear to you. Is there any doubt about that? No. No. So for the rest of the scenarios, see, if there exists such a scenario that dn mod dn minus 1 is not equal to 0, in such cases what you will do, you will check for the GCD, you will take out the GCD of a comma b first, and then you will just simply take out, GCD is well known as the greatest common divisor. You must have read about that. So you will just print this dn into dn minus 1 by GCD of a comma. That was simple. And it was pretty obvious with the observations that you can make with the test cases as provided in the question. So let me show you the code for the same. This is the code. So with GD, I am taking the GCD, and this I was just checking for the LCM, and for the same, I am just here finding the divisor. This is the answer of the first case. That is dn by dn mod dn minus 1 mod is equal to 0. Okay, so in that case, I will just multiply b, that is the last second divisor of x, with the divisor. Okay, so that is and for the rest case scenarios. So
So this was it for the first problems. मेरे पास मतलब बी के लिए मैंने कुछ और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचा था, लेकिन वो थोड़ा मुझे लगता है इजी है एज कम्पेयर टू समथिंग। एक सेकंड में विंडो शेयर करता हूँ। तनिष भैया आप एक बार अपना कोड भेजोगे? Okay, I'll share. ठीक है, इसके लिए मैंने पता क्या सोचा था, इसके लिए मैंने सिंपल एक अप्रोच लगाई थी, अभी बताता हूँ। ओके, इसके लिए मैंने पता क्या सोचा था, मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि जैसे फर्स्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ना, अगर देखो तुम्हें एक नंबर x के डिवाइजर्स गिवन है, तो पहला डिवाइजर n1 होगा हमेशा, ठीक है, और लास्ट डिवाइजर x होगा। अब जो सेकंड लास्ट डिवाइजर है, जो कि अभी हमारे केस में b है, और इससे जो नेक्स्ट है वो है a, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ एक बात ये बताना कि अगर x डिवाइड करता है b को, कोई भी नंबर, एक ऑब्जर्वेशन सिंपल मैथमेटिक्स ये है कि कोई भी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम नंबर के पावर्स में ना, और क्या कहते हैं, और कोई भी नंबर मतलब किसी भी कॉम्पोजिट नंबर से पहले हमेशा एक प्राइम नंबर आता है, ठीक है। तो मेरी अप्रोच ये थी कि जो भी इसका स्मॉलेस्ट वो होगा, क्या कहते हैं, तुम लोगों को पता हो कि अगर 1 इंटू एक्स गिव्स मी एक्स, राइट, तो जो इसका सेकंड मतलब जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो मल्टीप्लाई बाय बी मुझे क्या देगा, एक्स देगा, है ना। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा ब्रीफ करूँ तो 1 2 3 एंड देन 4 देन 6। आपके कोड फोर्सेस वाली स्क्रीन विजिबल है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें मतलब वीडियो में पूरी वैसे एक सेकंड रुकना। अब ठीक है। प्रॉब्लम तो मतलब अभी तुम लोग को पता है ना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि अगर 24 का या फिर 12 का अगर हम वो लिखते हैं, क्या कहते हैं, 24 भी कर सकते हैं यहाँ पे। 24 अगर हम लिखते हैं, ठीक है, उसके डिवाइजर से मैंने लिखे 24 के, ठीक है। तो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन सबको हम लोग क्या पता है कि 1 इंटू 24 गिव्स मी 24, 2 इंटू 12 विल गिव मी 24, 3 इंटू यहाँ पर 8 आएगा, 3 डिवाइड बाई 8 विल गिव मी 24, 4 इंटू 6 विल गिव मी 24, ठीक है। तो मेरे को पता है, मेरे को ये 8 और 12 गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं 12 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लूँ जो इसको डिवाइड करता है, जो कि क्या आएगा, 2 आएगा इस केस में, तो मैं फॉर श्योर हूँ कि 12 इंटू 2 मुझे क्या देगा, मुझे 24 देगा। अब ऐसे मैं श्योर क्यों, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे को बताना सिंपल सी, मेरे को पता है x डिवाइड करता है b को कम्प्लीटली, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ x मॉड b विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर कोई नंबर b को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखता है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b, अगर वो नंबर b को डिवाइड कर रहा है तो वो डेफिनेटली x को डिवाइड करेगा, है ना। अगर इसको समझना है तो देखो सिंपल है, 24 डिवाइड बाई 8 करो 0 आएगा, और 8 डिवाइड बाई 2 करो 0 आएगा। तो क्या 2 डिवाइड नहीं करेगा 24 को, करेगा, है ना। अगर कंडीशन तुम्हें सिंपल देखनी कि कोई नंबर दूसरे को डिवाइड करता है नहीं करता, तो ऐसे देख सकते हो 24 है, 24 को हम इसकी प्राइम फैक्टरेशन लिखते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर कितना होगा यहाँ पर 3 एंड 2 की पावर 3 नहीं, एक सेकेंड, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, हाँ। तो 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 1, और 8 की प्राइम फैक्टरेशन क्या होती है, 2 की पावर 3। तो मुझे पता है ये 2 की पावर 3 इससे सीधा कैंसिल होगा, इसलिए इसको डिवाइड कर सकता है, ठीक है। अब अगर मैं 2 की प्राइम फैक्टरेशन लिखूँ तो सिर्फ 2 की पावर 1, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये सीधा इसको भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल मेरा ये लॉजिक था कि अगर मेरे को 2 डिवाइजर पता है, तो अगर मैंने इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकाला, तो जो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो सकता है, एक पॉसिबल केस है, ठीक है। अगर वो इसका मतलब ठीक है, एक केस ये पॉसिबल था और एक केस ये पॉसिबल था कि या तो वो जो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है वो, या फिर जो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है
वो इस वाले का इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर देगा हमें, वो डेफिनेटली श्योर हूँ इस बात को लेकर, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे हम 4 और 6 का, ठीक है। देखो 4 का जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर होगा जो कि डिवाइड करेगा इसको, वो होगा 2, और 6 का होगा 2, ठीक है। तो दोनों का 2 ही आया है, दो मतलब जो मिनिमम वो 2 है, तो 2 इंटू 6 क्या होगा 12। तो बस हमें ये पता था कि इसका आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। अब इसको मैं दिखाता हूँ करके कि कैसे मैंने इस पे मतलब ये बात मैंने लिखी। 12 के डिवाइजर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। तो मुझे पता था ये इसको मल्टीप्लाई करने से ही ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं देखूँ क्या कहते हैं एक दूसरे केस को जो कि थोड़ा अलग था, ये वाला 3 एंड 11 वाला, ठीक है। अगर 3 एंड 11 है तो 3 एंड 11 का इसका स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या आएगा जो इसको डिवाइड करेगा, 3, 11 का 11, दोनों में से मिनिमम कौन सा है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई बी विल गिव मी 33। तो बस मेरी अप्रोच थी, मतलब मेरे को कुछ नहीं देखना, मेरे को सिंपल एक मैंने क्या किया, मैंने सिंपल किया एकदम। मैंने यार सोचा नहीं, मैंने क्या किया, मैंने पहले n का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर निकाला, मतलब एक एक नंबर से डिवाइड करके, और जैसे ही मेरा मतलब एक जो मेरा a है वो डिवाइड हो गया सबसे पहले मतलब प्राइम नंबर से, तो मैंने उसको x में अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने सेम चीज़ की b के लिए, और उसको भी मैंने अपडेट कर लिया x को अपने, मतलब जो पहला नंबर डिवाइड कर रहा था प्राइम नंबर उसे मैंने अपडेट कर लिया, ठीक है। फिर लास्ट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x इंटू बी किया और बस प्रिंट कर दिया सोल्यूशन। लेकिन जो सिंपल सोल्यूशन है वो तनिष्क का है यहाँ पर। ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स सोचा और मेरे को टाइम भी काफ़ी लगा था इसको सोचने में, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी अलग अप्रोच थी एज़ कम्पेयर टू मतलब जो GCD वाला पार्ट था, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है जो कि कहीं ना कहीं काम आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। देखो सी क्वेश्चन में तुम लोग ऐसी रीड करके बताता हूँ कि मतलब क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये सिंपल था, इसमें क्या था, ठीक है। सिंपल ये था, क्वेश्चन ये था कि यू हैव बीन गिवन एन एरे, तुम लोग को एक एरे दिया है एन इंटीजर्स की, ठीक है। एन इंटीजर्स की एक एरे है। अब उस एरे में तुम्हें क्या करना है, तुम लोगों को ना मतलब दो प्लेयर है इसमें सिंपल, एक का नाम है मिलाशा माशा और एक का नाम है ओलिया। तो हम लोग इसको ए और बी कर देते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए ए और बी, ठीक है। तो ए और बी दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं जिनके पास एक एरे है सिंपल, और ये मूव क्या चल सकते हैं, ये मूव ये चल सकते हैं कि ये दोनों जब ए की टर्न होगी या फिर बी की टर्न होगी तो ये दो इंडाइसिस चूज करेंगे, ये दो इंडेक्स चूज करेंगे डिफरेंट, दो डिफरेंट इंडेक्स चूज करेंगे, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, दो डिफरेंट इंडेक्स चूज करके ये कुछ नहीं करेंगे, ये उन दोनों का सम, जैसे हम लोग मान लो कि इन लोगों ने आई और जे को चूज किया, तो ये क्या करेंगे ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ जे का फ्लोर वैल्यू लेंगे डिवीजन का, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो सम आएगा उसको ये इंसर्ट कर देंगे एरे के अंदर, ठीक है। और ए आई और ए जे को डिलीट कर देंगे। अगर यहाँ पे ए आई था और यहाँ पर ए जे था तो ये इसको और इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे इनके सम को अपेंड कर देंगे मतलब इसको इंसर्ट कर देंगे इस एरे के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में कोई डाउट है, मतलब एक बार और सम अप कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमारे पास दो प्लेयर हैं ए और बी, और हमें एक एरे गिवन है एन इंटीजर्स की, ठीक है। ये गेम खेल रहे हैं और ये मतलब ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं जिसमें क्या होगा, ये हर मतलब जिसकी भी मूव होगी वो दो डिफरेंट इंडेक्स को चूज़ करेगा इस एरे के जो भी एग्जिस्ट करते हैं इस एरे के अंदर, और उनका सील वैल्यू का सम लेगा, मतलब एवरेज लेगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करके जो सम आएगा उसको इंसर्ट कर देगा एरे के अंदर और डिलीट कर देगा जो दो इंडेक्सेस ने चूज़ किए थे। जैसे इसने आई कोमा जे चूज़ किए तो उन दोनों वैल्यू को रिमूव कर देंगे हम लोग एरे से, ठीक है। ये इनकी मूव्स है, ठीक है। अब ये गेम रुकेगा कब, ये गेम जब रुकेगा जब जो एरे की लेंथ होगी वो एक सिंगल एलिमेंट होगा, मतलब
क्योंकि हम 2 एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं और एक को डाल रहे हैं, तो यानी कि हर बार क्या होगा, हर बार एरे की जो लेंथ होगी वो 1 से कम हो जाएगी, हाँ है ना, ठीक है। तो सिंपल ये था। और अब इसमें ना अब थोड़ी ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या आएंगी। और इसमें हमसे एक और चीज़ पूछी थी कि ना हमें आंसर बताना है हर प्रीफिक्स लेंथ के लिए। प्रीफिक्स लेंथ का मतलब क्या है कि अगर मान लो सिर्फ हमें 31 गिवन है तो इसका आंसर क्या होता, अगर सिर्फ 6 गिवन था तो उसका आंसर क्या होगा, अगर 6 और 3 एज एरे होती इन दोनों के पास तो उसका आंसर क्या होता, ठीक है। मतलब हमें सारी की सारी जो पॉसिबल प्रीफिक्स एरे बनेंगी इसकी, उन सब के लिए आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट और था यहाँ पर कि ना कि जो पहला प्लेयर है वो चाहता है कि जो फाइनल आंसर बचेगा लास्ट में वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। और जो और जो दूसरा प्लेयर है वो चाहता है कि जो लास्ट में फाइनल आंसर बनेगा वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो बस यही यहाँ पर क्वेश्चन का जिस्ट था, या जो भी तुम लोग कर सकते हो कंसिडर। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे कि ठीक है, ये ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 1 3 5, ठीक है। सबसे पहले ए प्लेयर चलेगा और फिर बी प्लेयर चलेगा। जो ए प्लेयर चाहता है वो चाहता है कि जो आंसर वो मैक्सिमम हो, और जो बी प्लेयर चाहता है वो चाहता है कि जो लास्ट में नंबर बचेगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। अभी मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि जो मेरे पास एरे है मैं 135 को कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर मेरे को 135 ऐसा इनपुट देंगे, मतलब खेलने के लिए देंगे इन दोनों प्लेयर को, तो मैक्सिमम आंसर क्या अवेलेबल हो सकता है, ठीक है, क्या पॉसिबल होगा। तो सबसे पहले ए, जैसे ए मूव करेगा तो ए चाहता है कि क्या कि आंसर एक काम करते हैं, पहले 135 को नहीं, पहले सिर्फ 1 ए के एलिमेंट को लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो सिंपल, अगर मेरे को गिवन है कि ए के एलिमेंट गिवन है, अगर इन्हें एक एलिमेंट गिवन है तो क्या ये प्ले मतलब खेल पाएंगे, नहीं, ये खेल ही नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट गिवन है, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। तो अगर सिर्फ 1 गिवन है तो उसका आंसर क्या होगा, 1, ठीक है। अब देखते हैं 2 एलिमेंट कंसिडर करके 1 एंड 2, ठीक है। अब अगर 1 एंड 2 है तो मूव किसकी आएगी, पहले ए की। एक ए के पास क्या पॉसिबल मूव्स है, ए के पास सिर्फ एक ही पॉसिबल मूव है, 1 और 2 को चूज़ करना, ठीक है। तो 1 को चूज़ करेगा, 2 को चूज़ करेगा, इनका सील वैल्यू का सम लेगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देगा। तो क्या होगा, 1 + 2 = 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, क्योंकि यहाँ पे सील वैल्यू, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 2 होगा। इसको एक बार मैं लिख देता हूँ, मैंने क्या बोला, 3 डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 1 × 2 विच इज़ 2। तो इसका मैक्सिमम आंसर जो मिलेगा मेरे को 2 आ सकता है, ठीक है। अब अगर एरे हो जाती है मेरे पास 1 2 एंड 3, अगर ये एरे है तो क्या कहो, मतलब इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन चलेगा, ए। तो ए किसको चूज़ करे कि आंसर मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो यहीं पर जो इसकी जिस्ट है वो देखते हैं, पहले हम उसको डिस्कवर करते हैं। एक चीज़ मेरे को बताना सिंपल, जब मैं 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ सम क्या आता है, इवन। और जब मैं इवन को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मेरे रिजल्ट में जो मैं मतलब मेरा एक -1 फैक्टर हो जाता है, क्या वो होगा। जैसे तुम लोगों ने इस केस में देखा, जब मैंने 1 + 2 किया मेरा सम कितना आया, 3, 3 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 1। तो यहाँ पर मेरा आंसर के अंदर एक कम आ रहा है, मतलब ये 1.5 वाले को मेरा 1.5 का लॉस हो गया, हाँ है ना। बस यही यहाँ पर केस था। तो तुम्हें बस ऑड और इवन का ही देखना था कि अगर इवन और ऑड में थोड़ा गेम खेलना था। जैसे कि समझते थोड़ा और इसको, अगर मेरे पास 1 + 3 होता, सम करूँगा कितना आएगा, 4, 4 डिवाइड बाई 2 विल गिव मी 2, और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, वापस से 4। और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 किया था, हाँ ठीक है किया था, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना था, 4, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, जब मेरे पास 1 और 3 गिवन था मेरा आंसर कितना आया, 4, ठीक है। अब अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पर कंसिडर कर रहा था 1 और 2 को लेके, जब मैंने बोला 1 और 2 है मेरे पास एरे में, आंसर कितना आया, 2, हाँ है ना। इसका सम कितना है, 3, आया कितना, 2, कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ, ठीक है। अब देखो 1 और 3 है तो सम कितना, 4, आया कितना, 4, कितने का लॉस हुआ, 0 का लॉस हुआ, हाँ है ना। तो बस तुम्हें यही इसमें देखना था कि भाई मैक्सिमम करने के लिए तुम लोग क्या करोगे।
जो प्रॉब्लम कौन सा वाला नंबर कर रहा है। अगर मेरे पास ऑड नंबर है तो वही तो मेरे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर मैंने ऑड प्लस इवन किया तो मुझे पता है मेरा सम 1 से डिक्रीज हो जाएगा, हाँ है ना, जैसा कि इस केस में हुआ 1 + 2 = 3, बट एक का लॉस हुआ जिससे मेरा आंसर कितना आया 2 आया। तो यहाँ पर ये चीज़ देखनी थी, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था क्वेश्चन में। अब इसको थोड़ा वो करते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे पूरा। जैसे कि 3 10 ये वाला केस लेते हैं, 3 10 11। सबसे पहले मैं देखूंगा मेरे पास अगर 3 अरे होती, सिर्फ 3 मेरे पास खेलने के लिए होती, तो मेरा आंसर आता 3। और जब मेरे पास अरे होती 3 और 10, मेरा आंसर आता 3 + 10 13 13। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं सीधा लिख देता हूँ। 13 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा इंटू 2 12, ठीक है। सम कितना आया था 13 और मेरे पास सॉल्यूशन कितना आया 12। तो तुम लोग देख सकते हो कि एक का लॉस हो गया, ठीक है। जब मेरे पास एक ऑड नंबर था, इतनी बात क्लियर हो रही है कि अगर सिर्फ एक ऑड नंबर था तो एक का लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑड नंबर होगा तो कैसे कर सकते हैं। 3 है, 10 है, 11 है, और अभी तक सिर्फ एक प्लेयर चल रहा था, अब दूसरा प्लेयर भी चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ए चलेगा। ए क्या करेगा, ए ये करेगा कि जो मेरे को नंबर लॉस कर सकते हैं मैं उनको रिमूव करूंगा। तो अगर मैं 3 और 11 को चूज़ करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास ए ने 3 और 11 में चूज़ किया, तो 3 + 11 विच विल गिव 14। और इसकी सील वैल्यू अगर करूँ और फिर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो ये मुझे वापस से 14 ही देगा। ये 14 डिवाइड बाई 2 = 7, 7 × 2 = 14 अगेन, ठीक है। तो जो मेरे पास एरे इस सम को मैं इसमें इंसर्ट करूँगा और 3 और 11 को रिमूव करूँगा, ठीक है। तो 10 एक सेकेंड तो मेरे पास जो अब एरे आएगी वो आ गई 10 और 14, ठीक है। टर्न आई बी की। बी क्या करेगा, बी के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, पहली बात तो 2 ही नंबर है, तो इन 2 नंबर को उठाएगा और यहाँ पर पुश कर, मतलब इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब सम करके प्रिंट कर देगा। तो 10 + 14, 2 नंबर इवन है तो मेरे को पता है कोई लॉस नहीं होगा, यानी कि 24 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 24। तो अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो वही आंसर है, अगर 2 एलिमेंट है जो आंसर आता है हमें, मतलब सिंपल कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं। जब 3 नंबर थे तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमें मैक्सिमाइज करना था, तो हमने ए को क्या, ए ने क्या पिक किया, 3 और 11 पिक किया। अब अगर ए यहाँ पर 3 और 11 को पिक करने की जगह 3 और 10 को पिक करता तो क्या आंसर बन सकता है वो देखते हैं, ठीक है। एक बार अगर ए ने पिक किया होता 3 और 10 को, तो इसका होता 3/2 विच इज़ 6 × 2 12, ठीक है। तो जो हमारी एरे बी को मिलती वो क्या मिलती, 12 + 14, सॉरी 12 + 14 नहीं, 12 + 10, मतलब 10 था, 12 और इंसर्ट किया, ठीक है। तो बी के पास कोई चॉइस नहीं होगी दोनों, मतलब दोनों नंबर पिक करने के अलावा। तो 10 + 12 एंड देन डिवाइड बाई 20, सो कितना हो गया 22 ही आएगा मल्टीप्लाई बाई 2 करने के बाद, क्योंकि 2 नंबर इवन है, ठीक है। तो ये सील वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखो ये इतना क्लियर है कि अगर मेरे को मैक्सिमाइज करना था, ए को अगर लॉस से बचाना है, तो वो ये करेगा कि जितने ऑड नंबर है ना उनको क्लब अप कर दे, क्लब अप करके इवन नंबर बना दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बी क्या करेगा, बी इसको लेगा और इसको लेगा, मतलब इन दोनों को ऐड करके क्या करेगा, एक का लॉस करवा देगा सम में, है ना। इतना थोड़ा बहुत क्लियर आया। अगर थोड़ा बहुत नहीं चमका तो अब चमकेगा ये वाला टेस्ट केस पूरा देखकर। मतलब सबसे बढ़िया टेस्ट केस ये था। 7 13 11 19 1 है ना, मैंने इससे सॉल्व किया मतलब पूरा क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब जल्दी सॉल्व हुआ एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, ए को छोड़ दें, ठीक है। देखो यहाँ पर देखना थोड़ा सा, 7 है, 11 है, फिर क्या है 13, देन 19, देन 1, ठीक है। अब अगर सिंपली देखें, तुम लोगों को पता है अगर मैं सिर्फ 7 दूंगा तो आंसर 7 आएगा, अगर 7 और 11 दूंगा तो आंसर कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा 18 18 डिवाइड, तो 18 ही आएगा क्योंकि 2 नंबर ऑड थे, ठीक है। अब बात करते हैं 7 11 एंड 13 की, ये वाला केस और एक अगले वाला, मतलब 19 तक डिस्कवर करवाऊंगा, 19 के बाद पूरा अप्रोच मतलब डिस्कस करते हैं कि मतलब क्या होगा, ठीक है। फिर मतलब कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 है, 11 है, 13 है। अब एक इसको पिक करे, क्योंकि दो मतलब तीनों नंबर ऑड है, तो एक किसी को भी पिक करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो मतलब जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, मतलब जो सम बनेगा वो सेम ही बनेगा। जैसे कि 7 + 11 लेते हैं अगर समझने के लिए, तो 7 + 11 कितना होगा 18,
18 डिवाइड बाई 2 इज़ 9, 9 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 18, तो हमें 13/18 की मिल जाएगी इसमें से एरे, ठीक है। अब वापस से सेम मतलब कोई मतलब चॉइस ही नहीं है उसके पास, एक बी के पास, तो इनको पिक करेगा तो एक ऑड है एक इवन है, तो सब में कितने का डिफरेंस आएगा, एक का कम, मतलब एक डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी कि 40, तो जो सम मिलेगा यहाँ पे हमें 40 का मिलेगा, ठीक है। 12 + 18। अच्छा, जैसे ही वो 19 पे आता है, अब अगर 19 लेगा ना तो थोड़ा मतलब अब है उसके पास थोड़ी चॉइस बी के पास कि वो किसको चूज़ करे, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर ही पूरा गेम सीन मतलब समझ में आएगा। 13 एंड देन 19, सारे नंबर ऑड है, ए आएगा, ए किसी भी दो को पिक करेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए ने पिक किया 7 और 11 या 7 और 13 पिक कर लिया, ठीक है। तो ये 20 देगा क्योंकि दोनों नंबर ऑड थे, और अगर दोनों नंबर ऑड है या दोनों नंबर इवन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब में मतलब कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। अभी वो चीज़ मैंने पीछे प्रूव कर ली। तो इन दोनों का सम आया 20 और 7 और 13 को डिलीट कर दिया, मेरे पास एरे बची ये। अब बी चाहता है कि मैं सम को मिनिमाइज करूं और ये टर्न है बी की, तो बी क्या करेगा, बी दो ऑड नंबर को क्या ऐड करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि दो ऑड नंबर या फिर दो इवन नंबर को ऐड करने से वो कोई लॉस नहीं करेगा, और बी चाहता है कि इसका लॉस हो, तो लॉस करने के लिए क्या करेगा, वो एक इवन को उठाएगा, एक ऑड को उठाएगा और फिर इसका लॉस कर देगा। अब क्लियर है, मतलब सिंपल है ना, कि अगर मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो मुझे पता है इवन नंबर आता है, और इवन नंबर को डिवाइड करने से क्या आएगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, मतलब कोई सील वैल्यू में कोई डेसिमल पार्ट नहीं आएगा, तो इसको वापस से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पे वही नंबर आ जाएगा, मतलब जो सम था इसका वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब सिमिलर केस इवन के साथ है, जो सम आएगा वो इवन आएगा, डिवाइड करूँगा 2 से, फिर मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो इवन ही आएगा, क्योंकि जब मैं इवन नंबर को डिवाइड करता हूँ 2 से तो कोई फ्रैक्शन मतलब कोई डेसिमल पार्ट नहीं आता, तो उस डेसिमल पार्ट का लॉस नहीं होगा मेरा, है ना। तो बस यही यहाँ पर ऑब्जर्वेशन थी कि अगर ऑड और इवन को ऐड करते हैं तो जो नंबर बनेगा वो ऑड नंबर बनेगा, और ऑड नंबर को जब मैं डिवाइड करूँगा 2 से तो एक 0.5 का डेसिमल पार्ट बनेगा, जो कि मुझे मेरा लॉस हो जाएगा, जो कि मुझे छोड़ना मतलब डिस्कार्ड करना पड़ेगा सील वैल्यू लेने की वजह से, ठीक है। और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 0.5 का जो लॉस था जो डिस्कार्ड किया वो कितने में चेंज हो जाएगा, 1 में। तो जो टोटल इफेक्ट होगा सम के अंदर वो इस 1 का होगा, ठीक है। ये थी इसकी ऑब्जर्वेशन, ये जो मेन ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी, की ऑब्जर्वेशन ये थी। अगर तुमने ये ऑब्जर्व कर लिया तो तुम्हें सब मतलब तुम्हें काफ़ी समझ में आ गया। तो अब अगर बी को लॉस करना है तो बी को तो मतलब अब पता है चीज़ बी को कि मैं तो एक इवन को उठाऊंगा एक ऑड को उठाऊंगा और इसका लॉस करवा दूंगा, तो कितने का लॉस होगा, 1 का। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 20 प्लस मतलब 1 का लॉस हो जाएगा 10, यानी कि 30,19, ठीक है। अब आते हैं ए की बारी। अब ए के पास कोई चॉइस है, ए के पास कोई चॉइस ही नहीं है, दो नंबर को उठाएगा। अब यहाँ पे देखो एक ऑड है एक इवन है, अगर एक ऑड है और एक इवन है तो क्या करेगा, मतलब इसका लॉस होना पक्का है, तो 30 + 18 हो जाएगा, ये एक कम कर दिया इसमें पहली लॉस का, तो ये हो गया 48। तो इसका आंसर आएगा 48 जब मैं पूरी एरे को कंसिडर करूँगा तो 19 तक, ठीक है। तो इसका आंसर 48 आ गया ऐसे। क्लियर है इतना तनिष? इसमें एक चीज ये कि हम मैक्सिमम क्यों नहीं उठा सकते हमेशा। मैक्सिमम नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, मतलब मैक्सिमम नंबर तू ले ले कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब थोड़ा जो मैंने और ऑब्जर्वेशन करी थी जल्दी जल्दी वो बताता हूँ क्या ऑब्जर्वेशन थी जो मेरे दिमाग में क्लिक हुई थी तुरंत। अब एक चीज़ देखिए, सिंपल बहुत ईजी है। देख, सबसे पहले मुझे ये बता सिंपल बात कि भाई चल कौन रहा है, सबसे पहले ए चलेगा। ए क्या चाहता है, मैक्सिमम करना। अब अगर ए चाहता है मैक्सिमम करूँ मैं आंसर को, तो वो क्या चाहेगा कि भाई बी कम से कम मेरा नुकसान करवा पाए। बी नुकसान कब हाँ। करवाएगा, जब उसको ऑड और इवन मिलेंगे तो वो ऑड नंबर को वेस्ट करवाएगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ सिंपल सी बात, इसी वाले टेस्ट केस को लेकर, जो ये जिसमें सारे नंबर ऑड थे, लास्ट वाला टेस्ट केस, इसी को मैंने उठाया। सिंपल मैंने बोला मेरे पास 7 इसमें कितने हैं, मतलब इसमें देख लेते हैं पहले, इसमें कितने हैं, 5 नंबर है जो कि ऑड नंबर है, ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 नंबर है, ऑड नंबर है, और इवन नंबर कितने मेरे पास 0 है अभी के लिए, ठीक है। तो ए चलेगा। ए क्या बोलेगा, भाई मैं 2 ऑड नंबर उठाऊंगा, क्लब करूंगा और एक इवन नंबर बना दूंगा। ऑड नंबर कितने बचेंगे, 3। कोई लॉस होगा नहीं, ठीक है। अब आती है बी की बारी। जैसी बी की बारी आई ना,
तो बी बोलेगा भाई देख इसके पास ऑड भी है इवन भी है, तो भाई एक हम्म ऑड वेस्ट कर दूंगा और एक का नुकसान करवा दूंगा, मतलब एक का लॉस करा और ए को इसने दिए 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब एक इवन नंबर क्यों मिला इसे, क्योंकि भाई हमेशा मतलब एक ऑड उठाया एक इवन उठाया। अब हाँ जब ऐड करेगा या फिर मतलब क्या कहते देखो यहाँ पे सिंपल क्या है ये चीज़ है ना, ये लास्ट में जो ऐड कर रहा है वो 2 से मल्टीप्लाई करके कर रहा है, तो जो नंबर आएगा लास्ट में वो इवन ही आएगा हमेशा, है ना, सिंपल सी बात है। तो वो एक और नंबर को वेस्ट कर रहा है, सिंपल सी बात, इसमें तो डाउट नहीं है तेरे को। बट बी ऐसा नहीं कर सकता कि वो हमेशा मिनिमम वाले उठा करके उसको अपेंड करे। फर्क क्या पड़ेगा ये बता, फर्क क्या पड़ेगा बता, चल बता। मिनिमम मान ले, चल अच्छा एक काम करते हैं, है ना, मान ले तेरे पास भाई तेरे को टेस्ट केस देता हूँ मैं इसको समझने के लिए, ये बाकी भी बताना मेरे को। सबसे पहले ले लेते हैं 2 2 2 और यहाँ पे ले लेते हैं भाई 3 3 3, ठीक है ये है। हम्म अब बी क्या चाहता है, बी तू कह रहा है मिनिमम को उठाएगा, हम्म सबसे पहले एक ही टर्न आएगी, एक आएगा भाई मैं तो ऑड और मतलब 2 ऑड नंबर को उठाऊंगा, इनका सम करूंगा कोई लॉस नहीं होगा, 6 3 2 2 2 ये आ गया। अब आता है हाँ बी की टर्न, बी कहेगा भाई मुझे करना है मिनिमम, तू कह रहा है इन दोनों को उठाऊंगा और ये वापस कर दूंगा, है ना, 2 + 2 कितना हो गया 4 4, मतलब वापस इसका सम ही आ जाएगा, यानी कि हाँ 2 3 4 और 6 ये आ जाएगा। हम्म अच्छा इसमें एक और ऑड नंबर डाल लेते हैं, 3 एक और डाल दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर भी 3 डाल देते हैं। अब आती है एक ही टर्न वापस से, तो ए बोलेगा भाई मैं इसको उठाऊंगा और इंसर्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो बी को क्या मिलेगा, बी को मिलेगा 2, अब क्योंकि दोनों नंबर और उठाए तो कोई फर्क पड़ेगा उसमें, कोई लॉस होगा नहीं, नहीं 2 4 6 और 6 आ गया, ठीक है। अब भाई अब देख एक बात बता, बी आ गया, बी 2 मिनिमम को उठाएगा, दोनों इवन है, कोई लॉस होगा नहीं होगा, कितना आ गया 6 6 6। ए आ गया, ए दोनों को उठाएगा, मतलब किसी को भी उठा ले तो 6 6 है, तो ए डालेगा हाँ 6 और 12, बी आया, बी को मिले 6 और 12, कोई चॉइस है नहीं, चॉइस ही नहीं है, तो क्या मिलेगा लास्ट में 18 आएगा, आंसर कितना आया 18 आया मैक्सिमम पॉसिबल। हम्म अब लेकिन एक बात मेरे को बता, इस पॉइंट पे यहाँ पर बी ना, बी क्या चाहता है, बी चाहता है जो तेरा आंसर हो ये मिनिमम हो, बी तेरे को 18 लाने नहीं देगा, तो बी मतलब बी की तो यही चाहे, मतलब बी तो यही ट्राई करेगा ना कि तेरा 18 आंसर ना आए, ओके ओके गॉट इट। समझ गया, हम्म कि अगर उसने तूने देख यहाँ पर तेरा कोई लॉस नहीं करवाया अभी ने, वो लेकिन 0.5 वाला पार्ट लॉस करा के अल्टीमेटली 1 का लॉस करा रहा है। हाँ बस यही सोचना था पूरे क्वेश्चन में। लेकिन अब देख, अब इसको सोचे तो सोचे कैसे, मतलब अब क्योंकि हमें सिर्फ एक एरे पे करना होता तो काम इजी था, लेकिन यहाँ पर तो बोला है कि सारी प्रीफिक्स वो करो, क्या कहते हैं ट्राई करो, तो कैसे करोगे। तो इसमें देख यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है, ये जो चीज़ दिखा रहा था ना मैं, अगर मेरे पास 5 ऑड नंबर है और 0 इवन नंबर है, देख इवन से ना स्टार्टिंग में इवन कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है क्यों, क्योंकि देख क्योंकि ए जब स्टार्ट करेगा तो बी को वो एक इवन हैंड ओवर करेगा ही करेगा हमेशा, मतलब इवन तो एग्जिस्ट करेगा बी के, जब बी की टर्न आएगी तो, है ना, हाँ ठीक है। तो बस ये चीज़ हो गई, तो यहाँ पे तेरे को समझ में आ गया कि भाई इनिशियली इवन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल ऑड ऑड से फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मेरे 5 ऑड थे तो ए ने 2 को यूटिलाइज करा, एक इवन बनाया और मतलब 3 ऑड और एक इवन इसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। अब बी की टर्न आई, बी ने इस ऑड को एक को वेस्ट किया और 2 इसको हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। अब वापस से ए की टर्न आई, तो अब ए क्या करेगा, ए ऑड और इवन को मिलेगा क्या, नहीं, ऑड तो कहेगा भाई मैं पहले अपने ऑड को बचाऊंगा, मैं इन दोनों में से एक इवन नंबर बना दूंगा, तो ऑड 0 हो गए और इवन कितना हो गया 1, और सॉरी इवन कितना हो गया 2, है ना, मतलब इसने दोनों ऑड नंबर उठा के एक इवन नंबर बना दिया और वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे ऊपर B सेकंड स्टेप पर दो इवन नहीं होने चाहिए, मतलब सेकंड स्टेप के बाद। यहाँ पे हाँ नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसने एक ऑड नंबर उठाया एक इवन नंबर उठाया, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया, अब एक ऑड और इवन का सम कितना आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, है ना, हाँ बट उसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो उससे कर मल्टीप्लाई रहे करते इवन आ गया, क्योंकि जो ये इवन उठाया तो वो डिलीट भी तो करेगा, और इसमें से एक और डिलीट किया, तो एक और डिलीट किया, एक इवन डिलीट किया ओके और एक इवन वापस से पुश भी तो किया, ओके गॉट इट। क्लियर है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो रिपीट कर लेना क्वेश्चन पढ़ के, तो तुम्हें पूरी कहानी मतलब क्या कंटेक्स्ट में दे रहा हूँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर 0 है और इवन नंबर 2 हो गए, ठीक है।
तो अब भाई बी कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने को। तू इससे ज़्यादा हमारा लॉस कर ही नहीं सकता। मतलब बी को, मतलब अगर ए ये बोलेगा तो बी ने कितना मैक्सिमम लॉस कर पाएगा, सिर्फ एक का लॉस कर पाएगा। तो तुम्हें ना बस यही ऑब्जर्वेशन निकालनी है, और कि मेरा ऑड 5 है, 7 होगा, मतलब 6 होगा, मतलब मेरे ऑड नंबर 6 होंगे, 3 होंगे, मतलब ऐसे करके तुम सारी ऑब्जर्वेशन निकाल लोगे कि भाई अगर 5 है तो कितना मैक्सिमम लॉस कर पाएगा, और क्या चीज़ फॉलो करनी है, ये चीज़ फॉलो करनी है। एक बार मैं और एक एग्जांपल लेके करता हूँ, फिर इसका कोड दिखा के नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है 15 मिनट का। वो तुम, मतलब मैं लॉजिक दिखाऊंगा और तुम कहोगे ये तो गलती कर दी बिना अटेम्प्ट किए, ठीक है। तो तुम लोगों को 5 का क्लियर हो गया कि 5 के में हम एक का ही लॉस करेंगे, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ 7 का, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा मतलब थोड़ा क्यों समझाता हूँ, ठीक है। ऑड नंबर थे 7 और इवन नंबर थे हमारे पास 0। अभी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितना भी हो इनिशियली। अब देखो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं इसको थोड़ा सब छोटा करके लिखूँ यहाँ पर, बी को क्या हैंड ओवर होगा, बी को हैंड ओवर होगा 5 ये और एक ये, हाँ है ना। बी इसमें एक का लॉस कर पाएगा, हाँ, तो यहाँ पर एक का लॉस हो गया। ए को वापस से क्या मिलेगा, ए को मिलेगा वापस से 4 ऑड नंबर और एक इवन नंबर, है ना। अब वापस से देखना, ऑड कितने मिलेंगे ए को, 2 मिलेंगे क्योंकि ये 2 को यूज़ कर लेगा, और इवन मिलेंगे जिसको 2। बी कहेगा कि वापस से मैं इसको एक को यूज़ कर रहा हूँ, तो ए को ये हैंड ओवर करके देगा, और एक ऑड नंबर और 2 इवन नंबर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ए के पास पहले कितने आए थे, 7 ऑड नंबर्स आए थे। नेक्स्ट टर्न में इसके कितने ऑड नंबर मिले, 4। उसके नेक्स्ट में कितने ऑड नंबर मिले, 1। तो हर बार कितने कम हो रहे हैं ऑड नंबर, 2 ये यूटिलाइज कर रहा है और एक ये वेस्ट कर रहा है, तो 3 नंबर कम हो रहे हैं हर बार 3 नंबर कम हो रहे हैं, हाँ है ना। हाँ तो बस क्लियर है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिंपल है कि ना, जैसे अगर सिर्फ एक मतलब स्टार्टिंग देखो, इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन सकती है कि मतलब अगर मेरे पास इतने ऑड नंबर हो तो मेरे पास कितने लॉसेज होंगे, ठीक है। वो मैंने देखी थी, मतलब किसी के कोड में कि उसने लिख रखी थी एक मैथमेटिकल इक्वेशन, लेकिन मैं भाई फिगर आउट नहीं कर पाया मैथमेटिकल इक्वेशन, मेरे पास टाइम कम था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को एक चीज़ पता थी बस। मैंने देखा कि भाई अगर एक ऑड नंबर है कितने का लॉस होगा, एक का लॉस होगा पक्का, ठीक है। और अगर मेरे पास 2 ऑड नंबर है तो कितने का लॉस होगा, दोनों का ही होगा। 0 है। अरे नहीं, ऑड नंबर दोनों जाएंगे ना, और इवन एक आएगा। अरे देख, 2 ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, हाँ मतलब ठीक है। लॉस कितने का होगा, 0 लॉस होगा, लॉस तो 0 होगा। ठीक है। अब देख, 2 का 0 का लॉस था, 5 का लॉस कितने का होगा, अगर मतलब मैं 3 नंबर बढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैंने बोला 5 था, 5 ऑड दिए और इवन 0 दिए। अगली स्टेज क्या होगी, 2 ऑड और एक इवन, ये वाली स्टेज आ गई। इसका मुझे पता है पहले से कितना है, एक लॉस है, और यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा इसमें एक ज़्यादा, क्योंकि हम इसको मतलब बी को बीच में एक हैंड ओवर करेंगे, और जैसे हम एक बार देते हैं ना उसको, वो एक लॉस करके दे देगा हमें पहले ही। तो बस इसमें एक प्लस कर देना है, सिंपल। 2 में 0 का लॉस था, 5 में कितने का होगा, 1 का, 5 + 3 8, 8 में कितने का होगा, 2 का, ऐसे ही करके 11 में कितने का होगा, 3 का, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 1 में कितने का लॉस है, 1 का, 4 में कितने का होगा, 1 का, और 5 में, सॉरी 5 कह रहा हूँ, 7 में कितने का होगा, 7 में 2 का, और 10 में 3 का। ऐसे करना था मतलब बस हमें, ठीक है। और मतलब अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन निकालोगे तो अब तुम निकाल पाओगे कि भाई 5 मतलब जितने नंबर ऑफ ऑड है, नंबर ऑफ ऑड्स डिवाइडेड बाय 3 एंड देन +1, शायद यही है, नहीं ये नहीं है, मतलब यही है कि बस नंबर ऑफ ऑड डिवाइडेड बाय 3, हाँ ये होगा सिंपल। लेकिन अगर वो ऑड है, या फिर एक सेकेंड रुको, मतलब ये चीज़ अभी छोड़ो, मतलब इसकी मैथमेटिकल फ्रेम में तुम्हें बाद में बता दूंगा, डिस्कस कर लेंगे उसको। लेकिन ये अप्रोच थी, ठीक है। तो तुम लोग इस चीज़ को मतलब कैलकुलेट कर लोगे एक ही बार, सारे टेस्ट केस के लिए मत करो, सिंपल एक ही बार ट्राई कर लो इसके लिए कि भाई मैंने क्या करा, मैंने 2 पे 0 था तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, यहाँ से 5 पे 2 प्लस मतलब 2 का +1, ऐसे मतलब मैं एक एक करके इंक्रीमेंट करते गया। ये चीज़ मैंने कर ली लूप से। प्रीवियस, इसका प्रीवियस क्या था, अगर हम आई हमारा 5 है तो i - 3 हमारा प्रीवियस होगा,
और जो भी इसका आंसर था वो इसमें +1, ये इसका आंसर होगा। तो बस मैंने ये चीज़ करी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये 2 के लिए, मतलब ये वाला जो स्टार्ट था और ये वाला स्टार्ट था i = 1 के लिए, ठीक है। और ये था i = 0 के लिए। तो इसमें मतलब ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और फिर मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने सिंपल किया। मैंने ये पहले 2 केस जो थे वो क्लियर वाले, वो मैंने अलग से लिख दिए, वैसे इनकी भी नीड नहीं थी, ठीक है। कोई सिर्फ पहला, जब एक सिंगल नंबर है उसको प्रिंट कर दो, और बाकी फिर तुम सेकंड से पूरा ये जो अपना लॉजिक है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये है जो मेन लॉजिक है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं मैंने क्या किया। मैंने पूरी एरे में ट्रेवर्स किया। मैंने ये ऑड और इवन को मैं काउंट कर रहा हूँ, सिंपल। ओ मीन्स ऑड और ई मीन्स इवन, ठीक है। और मैं सम को भी मेंटेन कर रहा हूँ कि मेरा सम क्या होगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, सम माइनस आंसर ऑफ ओ। आंसर ऑफ ओ क्या स्टोर कर रहा है कि मैं अगर मेरे नंबर ऑफ ओड्स ओ है तो कितना लॉस होगा, जितना भी लॉस होगा मैंने माइनस कर दिया मेरे सम में से और प्रिंट कर दिया आंसर। तो बस ये हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा आउटपुट आ रहा था, ठीक है। क्लियर है या नहीं, मतलब इसमें कोई डाउट है अभी भी है? कोई doubt? इम्प्लीमेंटेशन देखनी पड़ेगी एक बार। ये वाली देख मैं दिखाता हूँ थोड़ा, बताऊँ मतलब ये थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ? ये एक बार ट्राई करिएगा, मतलब एक बार खुद से ट्राई करियो ये चीज़ लिख लिख के। मतलब जैसे ये वाला बताया ना मैंने 5 के लिए, तो देख 0 से लेकर 10 तक लिख लियो। ये वाला, ये जो लॉजिक है ये ट्राई करियो, तेरे को दिख जाएगा कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। ओके। मैंने खुद ये किया, दिखाऊँ क्या? मतलब मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया है खुद से। तो भाई कुछ मतलब ये हवा में तो आता नहीं है। अरे यार ये मिनिमाइज नहीं हो रहा, छोड़ो, ठीक है। तो ये बस इसका इतना लॉजिक था कि बस सम मेंटेन करो, लॉस कैलकुलेट करो और प्रिंट कर दो बस, ठीक है। अब आती है डी की बात। डी से सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं था। अगर डी ट्राई नहीं किया तो भाई कुछ नहीं किया। अभी चालू हुई है, ये मेरा गलत नहीं है, ये मेरा एक अटेम्प्ट गलत था उससे आ रहा है, ठीक है। ये रहा क्यों मैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई कुछ है नहीं इसमें तो यार, कुछ था नहीं इसमें। मतलब मैं बताता हूँ तुम लोगों को कुछ डाउट क्या था। ये पहली बात तो क्वेश्चन समझाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था कि तुम लोगों को एक इंटीजर गिवन है n, जो कि एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। और तुम्हें क्या देना है, तुम्हें ना n स्ट्रिंग देनी है, मतलब n नंबर देने हैं तेरे को। मतलब तुम्हें जो आउटपुट देना है, तुम्हें n नंबर्स आउटपुट करने हैं सच डैट कि जो n की डिजिट्स का जो मल्टीसेट होगा, मल्टीसेट ऑफ डिजिट्स ऑफ n मस्ट बी सेम फॉर ऑल n नंबर्स, इसको थोड़ा समझाता हूँ। पहले तो ये समझाता हूँ कि मल्टीसेट ऑफ डिजिट से क्या मतलब है। तो मल्टीसेट ऑफ डिजिट से समझाता हूँ। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 1 6 9 2, तो जो इसकी मल्टीसेट होगा इसकी डिजिट्स का, वो क्या होगा 1 2 6 9, ठीक है। मतलब बेसिकली इसकी सारी डिजिट्स, तो जो डिजिट्स होंगी वो सारी सेम होनी चाहिए सब नंबर की। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 6 1 9, इसका क्या होगा मल्टीसेट डिजिट्स का 1 2 6 और 9। तो इसका मतलब इसकी मल्टीसेट ऑफ डिजिट्स और इसका मल्टीसेट ऑफ डिजिट्स सेम है, तो ये दोनों नंबर हमारे एक मतलब एरे में बन सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और था कि जो तुम n नंबर्स आउटपुट करोगे ना, जो n नंबर्स आउटपुट होंगे, दैट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मतलब समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये n नंबर्स आउटपुट करना बहुत ईजी, मल्टीसेट सबका सेम हो ईजी है, बस मतलब नंबर को मतलब डिजिट्स को आगे पीछे करते रहो, वो भी ईजी था। लेकिन ये पार्ट ईजी नहीं है ना, कि n जो नंबर आउटपुट करोगे वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि समझाता हूँ, जैसे अगर एक केस हम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ एक नंबर आउटपुट करो, तो एक नंबर क्या होगा, एक नंबर तुम कुछ भी आउटपुट कर दो, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं सॉरी 9 कर सकते हो सिंपल, ठीक है। 8 भी कर सकते हो, ये पॉसिबल आंसर है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब जो अगला इसका इनपुट होगा वो क्या हो सकता है? 3, जो कि एक ऑड नंबर है। तो 3 डिजिट के अच्छा हाँ, मैंने ये चीज़ भी नहीं बताई तुम लोगों को, ठीक है। तो हाँ, हमें जो ऑड इंटीजर दिया है n, हमें n नंबर्स प्रिंट करने हैं, प्लस वो जो नंबर्स होंगे उनके अंदर कितने डिजिट्स होंगी, n डिजिट्स होनी चाहिए, प्लस में ये भी पॉइंट है। तो इसमें मतलब बहुत सारे कंस्ट्रेंट हो गए। पहली बात तो n नंबर्स तुम्हें आउटपुट करने हैं, उन n नंबर्स में n डिजिट्स होने चाहिए और उन सबका मल्टीसेट सेम होना चाहिए, प्लस में वो परफेक्ट स्क्वायर भी होने चाहिए। तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेके समझा दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मेरा जो n की वैल्यू है, जो सिंगल इंटीजर मेरे को दिया है वो 3 दिया है, ठीक है। तो जिसका पॉसिबल आउटपुट होगा वो सिर्फ एक है, 169, 196 एंड 961। ये 3 नंबर है, तीनों नंबर में 3 डिजिट है और तीनों का मल्टीसेट भी सेम है, तीनों में सेम ही डिजिट्स यूज हो रही हैं, ठीक है। और ये तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हैं, जैसे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 14। 40, ठीक है, 14 का, और ये है हमारा 31 का, ठीक है। क्लियर है इतना? हाँ अच्छा, अब जो इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन थी ना, वो थी, मतलब मैंने बहुत सिंपल सोचा। इसमें पता है एक हिंट भी था। देखो, पहली चीज़ तो ना, इन लोगों ने 3 का यहाँ पर टेस्ट केस दे दिया, ठीक है। दूसरी चीज़, इन लोगों ने एक लाइन बोली अलग से, ध्यान दो तो, द मैथमेटिशियन ऑफ 31st लीसियम वर गिवन द फॉलोइंग टास्क। यहाँ 31 यूज़ करने का मतलब एक तो हो सकता है कि दिसंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस में एक रिप्रेजेंटेशन और दे रहा है। क्या ये जो 961 है, ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? 961 है ना, मतलब ये इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 961। इसके डिजिट्स क्या है? 196। अब मैं एक ऑब्जर्वेशन दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, जो मैंने करी है ब्रूट फोर्सली, मतलब मैंने सारे के सारे प्रिंट करके देखे और वहाँ से मुझे ऑब्जर्वेशन आई, ठीक है। देखो, जब मेरा 3 का था आउटपुट तो मैंने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब मैं 5 के लिए आउटपुट प्रिंट करता हूँ कि एक पॉसिबल आउटपुट क्या हो सकता है। तो मैं लिखूँगा 16900, 19600, 96100, 10609 और 90601। ये मेरे 5 के परफेक्ट स्क्वायर भी है, 5 डिजिट्स भी है, सबका मल्टीसेट भी सेम है, और ये परफेक्ट, मतलब हाँ परफेक्ट स्क्वायर तो मैंने बोल दिया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मतलब मैंने 5 के लिए प्रिंट किया तो ये प्रिंट हो गया। 7 के लिए प्रिंट करके देखता हूँ क्या है। अब ऐसा नहीं है कि यही, मतलब यही पॉसिबल आउटपुट था, पॉसिबल आउटपुट बहुत सारे थे, लेकिन मैंने फिगर आउट करा ये अलग से, ठीक है। अब बात करते हैं 7 के लिए क्या होगा। तो 7 के लिए जब मैं बताऊंगा तो तुम लोग हंसोगे कि ये तो भैया हम ही कर देते। तो इसके लिए होगा 16900, एक और 00, फिर 19600 और फिर 00, देन 96100, देन 00, एंड देन 106090, देन 00, then 90610, then 00, then again 100600, 9 and then 900601। बस ख़त्म। सबके पास 7 डिजिट्स हैं और प्लस सबका मल्टीसेट सेम है और सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये तुम लोग चेक कर सकते हो। तो अब इतना ड्रॉ करने के बाद मुझे लगता है तुम्हें सबको समझ में आ गया होगा कि पिछले वाला उठाया, सबके आगे 2 0 लगा दिए एक्स्ट्रा, ठीक है। और फिर जो दो, क्योंकि पिछले वाले के पास कितने नंबर होंगे? सिर्फ 3 नंबर होंगे, और जो अगला ऑड नंबर होगा उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2। तो इसमें 2 एक्स्ट्रा नंबर मुझे और ऐड ऑन करने पड़ेंगे, है ना। तो वो 2 एक्स्ट्रा नंबर कैसे कर बनाने हैं मेरे को? सिंपल ये फॉर्मेट यूज़ करना है कि बस एक 0 एक्स्ट्रा ऐड करना है बस मेरे को, मतलब ये चीज़ करनी थी, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझाता हूँ, ये चला क्यों, ये ऐसे कैसे आ गया। तो मेरे को एक बात बताओ, 10 का स्क्वायर होता है 100। अब मैं 100 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? जैसे कि 500 नहीं, 500 नहीं, सॉरी, हाँ, अगर मैं कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अब बताता हूँ ये क्यों, ठीक है। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूँ कोई भी 100 के साथ, तो देखो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है ये x, मान लो ये y था और ये x का परफेक्ट स्क्वायर था, तो x स्क्वायर इंटू 100 लिख रहा हूँ मैं, और ये 100 क्या है? 10 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर। अगर 2 परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो
जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा जो कि x इंटू 10 होगा, ठीक है। तो सिंपल यही था, क्योंकि मुझे पता है दो ऑड नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे 2 जीरो मैं एक्स्ट्रा ऐड करके जितने में नंबर पीछे, मतलब जितने पीछे मेरे परफेक्ट स्क्वायर बने थे उतने मैं परफेक्ट स्क्वायर तो ऑब्टेन कर सकता हूँ। फिर जो ये 2 एक्स्ट्रा बन रहे थे ना, इनकी मेरी प्योर ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये तो मैंने ऑब्जर्वेशन से निकाले हैं पूरे, मैंने चेक किया लिख लिख के, और प्रूफ बाय, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन या बोल सकते हो, या प्रूफ बाय एग्जांपल, मैंने सॉल्व कर दिया इसको। बस ये करना था, इसमें कुछ नहीं करना। पिछले वाले मतलब जैसे 5 है तो 5 में क्या था, ये आंसर था, ठीक है। एक सेकेंड यार, ये चल ही नहीं रहा। हाँ चल रहा है, ठीक है। जैसे मुझे पता था 5 के आंसर ये होंगे, तो 5 के जितने भी मैंने मतलब लिखे थे, मैंने 5 के पाँचों मैंने यहाँ पे लिखे, एंड देन जस्ट व्हाट आई डिड इज एडिड द एक्स्ट्रा 2 इन ईच नंबर, मेकिंग इट अ 7 डिजिट नंबर, ठीक है। और बस जो एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने थे, मैंने क्या किया, 1 6 9, बीच में 2 2 0 ऐड कर दिए, और एक अपोजिट लिखा 9 6 1 और 2 2 0 ऐड कर दिए। ये सिंपल हो गया। ये इजी था ना एज कम्पेयर टू सी में बहुत कुछ सोचना था, समझना था। यहाँ पे कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, सिंपल कंस्ट्रक्ट करना था। मतलब इसके ऊपर क्या एडवाइस हम लोग, क्या सजेशन है, कैसा लगा ये प्रॉब्लम? अब ये लॉजिक वाली पता लग गया ऑब्जर्वेशन तो अगर आ जाती तो पक्का अटेम्प्ट करते। क्या ये डी ना? इजी लगता है। मतलब ये वाली ऑब्जर्वेशन अरे मतलब मत पूछो, ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव का ना कुछ नहीं हो सकता। अगर हिट होता है तो बहुत इजी लगता है, और नहीं होता तो फिर तो बस बैठे रहो, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी इजी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे।